Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु के प्रिय भाइयों और बहनों, today's verse for our meditation is taken from Matthew's Gospel, 5th chapter, verse 12. आज का हमारा ध्यान का पद मैथ्यू के सुसमाचार 5वें अध्याय पद 12 से लिया गया है। Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. आनंदित और बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। We all know that the best message ever given on the planet Earth was the Sermon on the Mount. हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी ग्रह पर दिया गया सबसे अच्छा संदेश पर्वत पर दिया गया उपदेश था। The message was from the very mouth of Lord Jesus Christ. यह संदेश प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला था। The Beatitudes were mentioned as a part of this sermon. इस धर्मोपदेश के एक भाग के रूप में धन्य वचनों का उल्लेख किया गया था। What is the meaning of Beatitude? धन्य वचनों का क्या अर्थ है? These are the qualities to be possessed by the citizens of heaven, the born again children of God, while they are living in this world. ये वे गुण हैं जो स्वर्ग के नागरिकों, परमेश्वर के पुनर्जन्म वाले बच्चों के पास होने चाहिए, जबकि वे इस दुनिया में रह रहे हैं। They are expected to exhibit these divine qualities in and through their life. उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन में और उसके माध्यम से इन दिव्य गुणों को प्रदर्शित करें। Jesus gave this message to the individual believers, not to the unsaved world at large. यीशु ने यह संदेश व्यक्तिगत विश्वासियों को दिया, न कि बड़े पैमाने पर असंतुलित दुनिया को। And almost all the epistles written later by Paul, Peter, John, etc. contain the aroma of the Sermon on the Mount. बाद में पौलुस, पतरस, यूहन्ना आदि द्वारा लिखे गए लगभग सभी पत्र पर्वत पर दिए गए उपदेश की सुगंध को समेटे हुए हैं। The verse for our meditation today is a part of the 8th Beatitude. आज हमारे ध्यान के लिए जो पद्य है वह 8वें आशीर्वाद का एक हिस्सा है। Matthew 5, 11 and 12 mentions this Beatitude. मैथ्यू 5, 11 और 12 में इस आशीर्वाद का उल्लेख है। Verse 11, पद 11 we read, में हम पढ़ते हैं, Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की झूठी बुरी बातें कहें। When we read this verse, जब हम यह पद पढ़ते a हैं basic question strikes our mind. तो हमारे मन में एक बुनियादी सवाल उठता है, That is, वह यह why the men of this world revile and persecute or talk evil against the truth? कि इस संसार के लोग एक सच्चे मसीही की निंदा क्यों करते हैं, उसे सताते हैं या उसके विरुद्ध बुरी बातें क्यों कहते हैं। These worldly people won't talk against any other person. ये सांसारिक लोग किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध बात नहीं करेंगे। Neither revile nor persecute others. वे न तो दूसरों को गाली देते हैं और न ही सताते हैं। Why only they target Christian? वे सिर्फ ईसाइयों को ही क्यों निशाना बनाते हैं? If they revile and persecute or talk against the others who are not true Christian, अगर वे दूसरों को गाली देते हैं और सताते हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं जो सच्चे ईसाई नहीं the हैं, others won't stay quiet. तो दूसरे चुप नहीं रहेंगे। They will also adopt the same principle of tit for tat and respond likewise. वे भी वहीं जैसे को तैसा का सिद्धांत अपनाएंगे और उसी तरह जवाब देंगे। The simple reason why the people of the world revile and persecute Christians is because the true Christians are different from those of the world in their thinking, their attitudes and their conduct. दुनिया के लोग ईसाइयों को क्यों अपमानित और सताते हैं, इसका सीधा कारण यह है कि सच्चे ईसाई अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने आचरण में दुनिया के लोगों से अलग हैं। Our society is not friends with Lord Jesus Christ. हमारा समाज प्रभु यीशु मसीह का मित्र नहीं है। They crucified him. उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, Therefore, they do the same to his followers. इसलिए वे अपने अनुयायियों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। We cannot expect any better treatment. हम उनसे बेहतर व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। Whether we like it or not, there will be conflict between us and the world. चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, हमारे और दुनिया के बीच संघर्ष तो होगा ही। Though we are in this world, we are not of this world. हालांकि हम इस दुनिया में हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। That's why it is not easy to be a dedicated Christian. इसलिए एक समर्पित मसीही होना आसान नहीं है। A compromising or a backslidden Christian may manage his life easily in the midst of these worldly people. एक समझौतावादी या एक पथभ्रष्ट मसीही इन सांसारिक लोगों के बीच में आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, But for a true Christian, it will be like swimming against the tide. लेकिन एक सच्चे मसीही के लिए यह बहुत मुश्किल होगा। There will be radical difference between the thinking of a worldly person
and that of a true Christian. एक सांसारिक व्यक्ति और एक सच्चे मसीही की सोच में बहुत बड़ा अंतर होगा। The world praises pride, not humility. दुनिया नम्रता की नहीं, घमंड की प्रशंसा करती है। It is a sin-loving and sin-sick world. यह पाप प्रेमी और पाप रोगी दुनिया है। The world is at war with God, while Lord Jesus Christ is seeking to reconcile the world with the Father. दुनिया परमेश्वर के साथ युद्ध कर रही है, जबकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया को पिता के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। Jesus wants to make his enemies as his children. यीशु अपने शत्रुओं को अपने बच्चों की तरह बनाना चाहते हैं। But the world says that sinner must be punished. लेकिन दुनिया कहती है कि पापी को सजा मिलनी चाहिए। Jesus says, प्रभु यीशु कहते हैं, sin must be punished and the sinner must be forgiven and saved. पाप को सजा मिलनी चाहिए और पापी को माफ किया जाना चाहिए और बचाया जाना चाहिए। And when he died on the cross, जब वह क्रूस पर मरा he became sin for us. तो वह हमारे लिए पाप बन गया। He is not a sinner for us, was made sin for us. वह हमारे लिए पापी नहीं है, वह हमारे लिए पाप बना। Father, being a holy God, punished that sin. पिता एक पवित्र परमेश्वर होने के नाते उस पाप को दंडित किया। So the way of the world is against the way of God. इसलिए संसार का मार्ग परमेश्वर के मार्ग के विरुद्ध है। Children of God, we think like God, as it is written in Philippians 2:5. परमेश्वर के बच्चों के रूप में हम परमेश्वर की तरह सोचते हैं, जैसा कि फिलिप्पियों 2:5 में लिखा The है, mind of Jesus. हमारे पास यीशु का मन है। When we have the mind of Jesus, the world will surely hate us. हमारे पास यीशु का मन है, संसार निश्चित रूप से हमसे घृणा We करेगा। must expect to be persecuted if we are living as God wants us to live in this world. अगर हम इस दुनिया में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, तो हमें सताए जाने की उम्मीद करनी चाहिए। Sometimes, though we are believers, कभी कभी हम विश्वासी होते हुए भी we are prone to commit some mistake. कुछ गलतियां कर बैठते हैं। As the result of this, we suffer due to our foolishness or disobedience. इसके परिणाम स्वरूप हम अपनी मूर्खता या अवज्ञा के कारण कष्ट उठाते हैं। Here Jesus is not talking about such type of suffering because of our own failure. यहाँ यीशु हमारी अपनी असफलता के कारण होने वाले इस प्रकार के दुख के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। The suffering mentioned in verses 11 and 12 is for his name's sake पद 11 और 12 में वर्णित दुख उसके नाम के कारण है and because of our faith and witnessing for Jesus. और यीशु के प्रति हमारे विश्वास और गवाही के कारण है। So 3 forms of trials are predicted for the followers of Christ in these verses. इसलिए इन पद्य में मसीह के अनुयायियों के लिए 3 तरह की परीक्षाओं की भविष्यवाणी की गई है। They are वे हैं railing, persecution and slandering. गाली गलौज, उत्पीड़न और बदनामी। A Christian can expect opponents of the gospel to use every weapon at their disposal. एक मसीही उम्मीद कर सकता है कि सुसमाचार के विरोधी अपने पास मौजूद हर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। So ridicule includes using humor and mockery. इसलिए उपहास में हास्य और मजाक का इस्तेमाल शामिल है। Persecution includes physical and mental torture, even murder. उत्पीड़न में शारीरिक और मानसिक यातनाएं और यहाँ तक कि हत्या भी शामिल है। Slander is false accusation. बदनामी में झूठे आरोप लगाना शामिल है। When we see the church history, जब हम चर्च के इतिहास को देखते हैं we understand that it is written by the blood of the martyrs right from Stephen. तो हम समझते हैं कि यह स्टीफनुस से लेकर शहीदों के खून से लिखा गया है। Our response to such persecution must be rejoicing in the Lord because He counted us worthy to suffer ridicule, persecution for His name's sake. इस तरह के उत्पीड़न के प्रति हमारी प्रतिक्रिया प्रभु में आनंदित होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें उपहास, उत्पीड़न और बदनामी सहने के योग्य समझा। Speaking to church at Smyrna, God said, स्मिरना में चर्च से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, "Be thou faithful unto death." मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो। We have to note that in all these things Christ suffered for us in the flesh. इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी बातों में मसीह ने हमारे लिए शरीर में रहकर दुख उठाया। So before I close, इसलिए समापन से पहले let us remember that afflictions we experience in this life are light in comparison to the weight of glory and reward we are going to experience in heaven, as we read in 2 Corinthians 4:17. हमें याद रखना चाहिए कि इस जीवन में हम जो कष्ट अनुभव करते हैं वे स्वर्ग में मिलने वाली महिमा और पुरस्कार के वजन की तुलना में हल्के हैं, जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों 4:17 में पढ़ते हैं। May God grant us the needed patience to endure sufferings for His name's sake. परमेश्वर हमें अपने नाम के लिए कष्ट सहने के लिए आवश्यक धैर्य प्रदान करे। Let us keep in view of the future eternal glory. आइए हम भविष्य की अनंत महिमा को ध्यान में रखें। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें। Shall we? चलिए प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्यारे स्वर्गीय पिता,
We thank thee for the Sermon on the Mount. हम आपको पहाड़ पर दिए गए उपदेश के लिए Thank धन्यवाद देते thee, हैं। O Lord, for revealing unto us what is going to happen to us. हे प्रभु, हमें यह बताने के लिए धन्यवाद कि हमारे साथ क्या होने वाला है। Though you loved the world, God so loved the world, but the world rejected you. परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया, परंतु संसार ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया। They crucified you. उन्होंने तुम्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। Being your followers, we also will face the same treatment. तुम्हारे अनुयायी होने के नाते हम भी उसी व्यवहार का सामना करेंगे। O Lord, when the people, O Lord, revile us, or persecute us, or slander us, हे प्रभु, जब लोग हमें गाली देंगे, हमें सताएंगे या हमारी निंदा O करेंगे, Lord, help us to have your mind. हे प्रभु, हमें अपना मन रखने में मदद करें। O Lord, they will be mocking us. हे प्रभु, वे हमारा मजाक O उड़ाएंगे। Lord, they will be persecuting us physically and also mentally. हे प्रभु, वे हमें शारीरिक और मानसिक रूप से भी सताएंगे। They will be talking so many slanders. वे बहुत सी बदनामी करेंगे, But help us to be joyful. लेकिन हमें खुश रहने में मदद करें, Because thou hast counted us worthy to suffer shame for the name. क्योंकि आपने हमें उनके नाम के लिए शर्मिंदगी झेलने के योग्य समझा है। If any one of our dear ones are going through such situation, अगर हमारे प्रियजनों में से कोई भी ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, help us not to be discouraged. तो हमें निराश न होने में मदद करें। Today the glory they are going to enjoy is far greater than the sufferings what we are facing today. एक दिन वे जो महिमा का आनंद लेने जा रहे हैं, वह उन कष्टों से कहीं ज्यादा है जो हम आज झेल रहे हैं। Keep our eyes on the future glory. हमारी नजर भविष्य की महिमा पर बनी रहे। Help us to meditate these things throughout this. हमें इस पूरे दिन इन बातों पर ध्यान लगाने में मदद We करें। do pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।